Welcome, dear friends, once again. And again, we are here with a new video on Keynesian theory. And before this video, I would like to express that the sole purpose of this video is for late bloomers. These students they don't have the habit of reading books, so it is a line by line reading for these students. Previous video we discussed about various curves, components of aggregate demand, derivation of saving curve from consumption curve, and in this video we are going to focus on equilibrium, income, and multiplier mechanism. Multiplier mechanism we are not going to discuss as the video will be very long. So equilibrium, income we are going to focus on. So let us start with the video. Determination of equilibrium output or income in the short run. First of all, we should know what is equilibrium. Equilibrium is a state where there is no tendency to change. इक्विलिब्रियम संतुलन वह अवस्था है जिसमें परिवर्तन की कोई चाह नहीं होती. Whether it is a consumer equilibrium, whether it is a market equilibrium, whether it is a macroeconomic equilibrium, or whether it is a any element which are making compounds, for example NaCl or any other compound, they try to accommodate the electronic configuration of inert gases. Octet or duet they try to make, and they want to stay in equilibrium. So here we are not going to discuss the chemistry equilibrium or any other equilibrium, but we are going to talk about the economies equilibrium, which is a aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand, of course, you know that the Keynes has focused on aggregate demand, that demand is the focus point for Keynesian theory, not the supply side, because supply side already there is a ideal production capacity. It has not been used because there is no tendency to further investment, and so on. So let us start with this notion about the equilibrium of economy. So determination of equilibrium output or income in the short run. Keynes always talk about the short run, remember. So aggregate supply, aggregate demand पहले देख चुके हैं. We are going to focus on aggregate supply. Aggregate supply is the sum total of all final goods and services produced in an economy during an accounting year. तो इसको हम समझ गए हैं, ये आउटपुट है टोटल. जो भी हम एक साल में वस्तुओं फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उसके सम टोटल को हम एग्रीगेट सप्लाई कह रहे हैं. इन केन्सियन थ्योरी of income and employment, aggregate supply refers to the ex ante aggregate supply. Ex ante means intended, planned, planned aggregate output produced in economy during an accounting year. In a two-sector economy without the government imposing indirect taxes, a two-sector economy without the government, सरकार के बिना दो सेक्टर इकोनॉमी है C और I, imposing indirect taxes and subsidies, the aggregate value of total final goods and services produced in the economy is distributed among the factors of production, wages to labor, interest to capital, and rent to land. Whatever is left over is appropriated by the entrepreneur and is called a profit. Thus, the sum total of aggregate factors payment in the economy, national income, is equal to the aggregate value of final goods and services produced in the economy, aggregate supply. अब यहाँ कहते हैं कि जितने भी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जैसे वेज मिलता है किसको, लेबर को, इंटरेस्ट कैपिटल को मिलता है, रेंट लैंड को मिलता है, और जो कुछ भी बच जाता है वो एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट के रूप में. सो इस प्रकार
सम टोटल ऑफ एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट्स, सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम हो जाता है, इज इक्वल टू द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और वही हमारे एग्रीगेट वैल्यू जो होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के, उसके बराबर होती है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो इनकम एग्रीगेट सप्लाई एस के बराबर होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई एस इज इक्वल टू नेशनल इनकम वाई। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय 45 डिग्री लाइन। ये 45 डिग्री लाइन है और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है। चलिए इसको हम थोड़ा सा दोबारा बोल दें, इसलिए कि उस समय पूरा पिक्चर नहीं था। ये ओरिजिन है और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये 45 डिग्री लाइन से है। अभी अभी हमने देखा एस इक्वल टू वाई होता है, कैसे होता है बता दिया गया। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज ऑफ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन हैज़ द फीचर्स दैट एवरी पॉइंट ऑन इट हैज़ द सेम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स। सिंस इनकम इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, इनकम को हम एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑन द वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई को दिखा रहे हैं। तो अब दोनों बराबर हैं, इसलिए 45 डिग्री लाइन ही इनको दोनों को इक्वलिटी को बताती है। करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द 45 डिग्री लाइन, ओके, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, मतलब जितना ये है उतना ये है, जितना इधर है इतना इधर है, ठीक है, इस बात को बताया जा रहा है इस लाइन के द्वारा। तो सिमिलरली एट पॉइंट बी, ओके, सॉरी, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू 5 पॉइंट बी पर, ये देखिए 500 है, यहाँ 500 है। तो ये लाइन जो है एग्रीगेट सप्लाई और इनकम इस पॉइंट को सिग्निफाई करता है कि ये बराबर ये, तो जितना वाई है उतना है उसी पॉइंट पर, यहाँ पर देखिए एक्स एस बराबर है। अब आते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम C plus I approach or ADAS approach. Equilibrium requires that the plans of suppliers are matched by the plans of those who provide final demands in the economy. ये क्या कहता है कि equilibrium requires, equilibrium क्या चाहता है, that the plans of suppliers, जो सप्लायर का जो पूर्ति करने वाले हैं, जो उनकी जो प्लानिंग है, आर मैच्ड, किससे मैच हो जाए, प्लान्स ऑफ दोज हु प्रोवाइड फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमी, ठीक है, जो फाइनल गुड्स को प्रोवाइड फाइनल डिमांड्स इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में फाइनल डिमांड करते हैं वो बराबर किसको हो जाए, जो सप्लाई की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो मतलब जितनी डिमांड हो, इधर डिमांड हो उतनी सप्लाई हो जाए। Thus in this situation x ante aggregate demand is equal to x ante aggregate supply, ठीक है। ये हमारा अप्रोच करता है इक्विलिब्रियम के लिए, जितना डिमांड किया जाए उतनी सप्लाई हो जाए। अब आते हैं हम इक्विलिब्रियम इनकम और आउटपुट रेफर्स टू द लेवल वेयर एक्स ante aggregate डिमांड इज इक्वल टू एक्स ante aggregate सप्लाई। इक्विलिब्रियम इनकम और आउटपुट क्या बताता है, दैट लेवल वेयर एक्स ante aggregate डिमांड, एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड जो प्लान्ड है वो इक्वल है किसके, एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है। सिंस AD इज इक्वल टू C plus I एंड AS इज इक्वल टू Y, देयरफॉर इफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम देन Y इज इक्वल टू C plus I। तो अभी आपने देखा कि Y इज इक्वल टू C plus I, अभी हमने देखा कि ये AD है, AD इज इक्वल टू C plus I है, और हमने यहाँ देखा कि इक्विलिब्रियम इनकम और आउटपुट रेफर क्या करता है, दैट लेवल वेयर एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई। ये एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड है C plus I और एस आंटे एग्रीगेट सप्लाई है Y, तो C plus Y इज इक्वल टू C plus I और AS इज इक्वल टू AD। सब्स्टिट्यूटिंग C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, अब यहाँ पर C को की जगह हम C बार प्लस BY लिख सकते हैं और आई की जगह आई बार ले देते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, y इज इक्वल टू C बार प्लस BY, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, तो हमने C की जगह इसको लिख दिया, प्लस I की जगह हमने I बार कर दिया। अब ये y इज इक्वल टू C बार प्लस I बार एक साथ कर दिए, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये दोनों मिलके हमारे हो जाएंगे
ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस बी वाई। द term y on the left hand side of the above equation represents ex ante or planned output of final goods in the economy. On the other hand, the expression c bar plus I bar plus by on the right hand side denote the ex ante or planned aggregate demand or planned aggregate expenditure for the final goods in the economy. तो एक तरफ ये एग्रीगेट सप्लाई को दिखाता है एक्स आंटे और प्लान्ड आउटपुट को दिखाता है वाई, और इधर क्या दिखाता है, इधर ये दिखाता है एक्स आंटे और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड और प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम एल्जेब्रिक मेथड से, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सी के प्लस पर सी बार प्लस बी वाई लिखते हैं और आई की जगह आई बार। सो हम लोग क्या मिलता है, वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार, वाई माइनस बी वाई। अब इसको हमने बी वाई को इधर लेकर आया, हाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो वाई माइनस बी वाई यहाँ इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार। अब वाई हमने कॉमन ले लिया, तो y इंटू वन माइनस बी इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार, तो y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार डिवाइड बाई वन बाई बी। द एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा। एक्स पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल डिमांड और एक्चुअल सप्लाई हमेशा बराबर होगा। हाउएवर एक्स आंटे मतलब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई, ऐसा तभी होगा जब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एडी और प्लान्ड एग्रीगेट एस ये जब बराबर तभी होंगे व्हेन द इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स दैट द प्लान्स ऑफ सप्लायर्स आर मैच्ड बाय प्लान्स ऑफ दोज हु प्रोवाइड फाइनल डिमांड्स इन द इकोनॉमी। ये क्या बताता है कि इक्विलिब्रियम क्या बताता है, रिक्वायर्स दैट द प्लान्स ऑफ सप्लायर्स, जो सप्लायर की जो प्लानिंग है आर मैच्ड, वो मैच कर जाती है प्लान्स ऑफ दोज हु प्रोवाइड द फाइनल डिमांड्स इन द इकोनॉमी, तो प्लान जो है डिमांड के बराबर हो जाएगी। दस इन दिस सिचुएशन एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड, जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। अब हम आते हैं ऊपर और ऊपर बढ़ते हैं। हाउ द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एडी इज इक्वल टू एस is necessary condition for equilibrium level of income or output. When AD is not equal to AS, then output will tend to adjust up or down until two are equal again and the economy achieves the equilibrium level of national income. When X ante aggregate demand is less than X ante aggregate supply, AD is less than AS, it means planned expenditure on final goods by households falls short of the output of final goods that the producer have planned to produce in a given year. It means ये बताता है कि planned expenditure on final goods, जो planned expenditure है final goods के ऊपर हाउस होल्ड के द्वारा, ये कम हो जाता है, falls short of output of final goods, जो उत्पादन है उससे कम है, that the producer have planned to produce in given year, तो जितना प्रोड्यूसर ने प्लान किया था उससे कम है हाउस होल्ड का जो डिमांड है। ठीक है, इट मीन्स दैट प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, ये एक्सपेंडिचर को दिखाता है, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय हाउस होल्ड के द्वारा जो प्लान किया गया एक्सपेंडिचर वो कम है किससे, आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स दैट द प्रोड्यूसर हैव प्लान टू प्रोड्यूस इन द गिवन, जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया हुआ है प्रोडक्शन करने का उससे कम है
ये डिमांड हाउस होल्ड के द्वारा जो डिमांड किया गया है एक्सपेंडिचर करने का, जो प्लानिंग किया गया है खर्च करने का, वो कम है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, स्टॉक्स विल बी पाइलिंग अप। अब चूँकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो और डिमांड कम है तो क्या होगा, स्टॉक्स विल बी पाइलिंग अप इन द वेयर हाउस विच इज़ कंसिडर्ड एज अनइंटेंडेड, जो कि डिजायर्ड नहीं है, जो कि इच्छित नहीं है, अनप्लान्ड एक्युमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ द अनसोल्ड गुड। और ये अनप्लान्ड जो है एक्युमुलेशन हो गया इन्वेंट्रीज का, ये क्यों हुआ, क्योंकि स्टॉक्स विल बी पाइलिंग अप बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई आउटपुट ज़्यादा है और हाउस होल्ड के द्वारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है। टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्रीज टू द डिज़ायर्ड लेवल, अब इन्वेंट्रीज को डिज़ायर्ड लेवल पर लाने के लिए, मतलब जितनी डिमांड है उसके लेवल पर लाने के लिए, to bring back the inventories to the desired level, producers may decrease employment and hence the output decreases। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट घटाएंगे ये, जिससे कि एस घटे और घटते घटते कहाँ हो जाए, एडी के बराबर हो जाए। दिस मैकेनिज्म विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज रीइंस्टेटेड वेयर एस बिकम्स इक्वल टू द एडी। अब आते हैं आगे। When AD is less than AS, the level of output, employment and income will decrease in the economy। ये important है, conclusion के रूप में है। अब आते हैं, when X ant aggregate demand is more than X ant aggregate supply, when AD is greater than AS। अब यहाँ जैसे हमने यहाँ व्याख्या की उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। It means planned expenditure, ये planned expenditure AD on final goods by household, ठीक है, exceeds the output of final goods that the producers have planned to produce in the given year। तो मतलब एक की डिमांड ज़्यादा है, जो कि प्रोड्यूसर ने जो प्लान किया हुआ है प्रोडक्शन करने का उससे ज़्यादा है। इट विल लीड टू एन अनप्लान्ड डिकम्पलीशन फॉल ऑफ इन्वेंट्रीज। अब इसके बाद क्या होगा कि वो इन्वेंट्रीज वो शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिमांड ज़्यादा है। जो पाइपलाइन में होगा उसको भी प्रोडक्शन में लगा दिया जाएगा, तब भी कम होगा। इट विल लीड टू एन अनप्लान्ड डिकम्पलीशन फॉल ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कम हो जाएगी। जो रखा गया होगा इन्वेंट्रीज उसको भी प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा, चूँकि डिमांड ज़्यादा है। टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्रीज टू द डिजायर्ड लेवल, प्रोड्यूसर may increase employment and hence the output yes increases। अब इकोनॉमी को सही रास्ते पर लाने के लिए, टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्रीज टू द डिजायर्ड लेवल, उचित स्थान लाने के लिए, उचित का प्रयोग करने के लिए, प्रोड्यूसर्स में इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। अब ऐसी स्थिति में प्रोड्यूसर क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा एंड हेंस द आउटपुट एस इंक्रीजेज, और एस क्या होगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। दिस मैकेनिज्म विल कंटिन्यू, ये तरीका चलता रहेगा टिल द इकोनॉमी इज रीइंस्टेटेड वेयर एस बिकम्स इक्वल टू एडी, और इकोनॉमी वहाँ इक्विलिब्रियम में होगी जहाँ एस और एडी बराबर हो। व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एस, द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी। जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, तो निश्चित रूप से आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी। तो आज हमने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जहाँ मिलते हैं वहाँ पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। अब एडी ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, और एडी कम होता है तब क्या होता है। एडी ज़्यादा होता है तो हमारा मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है। एडी ज़्यादा होगा और एस कम होगा, मतलब प्रोडक्शन कम होगा, डिकम्पलीशन, इन्वेंट्रीज घट जाएगा, और डिमांड ज़्यादा होने से एक तो वैसी परिस्थिति में क्या करते हैं, तो इकोनॉमी को अगर हम लेवल पे लाना चाहते हैं तो हम एएस चूँकि कम है तो एएस को बढ़ाएंगे। टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्रीज टू द डिजायर्ड लेवल, प्रोड्यूसर्स में इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड हेंस द आउटपुट एएस इंक्रीजेज। तो ये एक कंप्लीट मैकेनिज्म था एडी और एएस के अप्रोच का। एडी पहली बार हम देखेंगे एडी लेस देन एएस, और फिर दूसरा केस क्या होगा, एडी इज ग्रेटर देन एएस, और हम ये मान चलते हैं कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, एडी इज इक्वल टू एएस। तो अगली बार हम
चर्चा करेंगे मल्टीप्लायर की, और कैसे एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड होता है। तो पहली बात, एक मल्टीप्लायर से पहले एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड पर एक अलग सा वीडियो बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।